with the topic of blood coagulation, another property of a blood. Now, point to be noted, the very first statement that blood coagulation is the property of blood plasma. Until and unless blood में मौजूद clotting factors इस्तेमाल नहीं हो जाते हैं, we call the liquid matrix as blood plasma. So, the phenomena of coagulation exhibited by blood is only by virtue of plasma. Next, it is an immune response. Actually, blood coagulation एक तरह का immune response है, and that too an inflammation immune response या inflammatory response. How to justify the statement? It's not only the property of blood plasma, else it is an immune response, an inflammatory response by participation of histamine. ब्रैकेट में टिश्यू फैक्टर. Now this has not been included among the 13 factors. लेकिन actually जो ये पूरा coagulation response है, ये trigger histamine ही करता है, और ऐसा करके अगर histamine participate करता है, that becomes an inflammatory type of immune response of the body. Now if I have stated the blood coagulation to be so-called immune response, the next question arises कि what type of resistance it will offer. तो उसका आंसर है it's an innate immunity. It's an innate immunity. By birth ये ability सब में मौजूद होना चाहिए. Non-specific, in order to offer resistance to the body as follows. It plays two roles for the body and thereby offer some degree of resistance and protection. First is prevent over loss of blood, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की डेथ इसी वजह से हो जाएगा कि अगर वो ब्लीड आउट कर जाए ज्यादा, क्योंकि एज यू आर नाउ वेल अवेयर कि बॉडी में टोटल 46 लीटर फ्लूइड का 5 लीटर फ्लूइड ब्लड है, उसमें से अगर मोर देन 2 लीटर अगर बॉडी से ड्रेन आउट हो जाए ड्यू टू एनी सच टाइप ऑफ कैजुअलिटी, तो दैट इज वन ऑफ द कॉज, क्योंकि बॉडी तुरंत डिहाइड्रेट होकर डेथ हो जाएगा. मतलब तो प्रिवेंट ओवर लॉस ऑफ ब्लड फ्लो या ओवर लॉस ऑफ ब्लड, and to re-establish the first line of defense. क्योंकि बॉडी सरफेस पे कहीं भी चोट लगेगा, वुंड जो होगा, इट इज एंट्री गेट, इट्स गोइंग टू बी एन एंट्री गेट फॉर द जर्म्स, पैथोजेंस. टू री-एस्टैब्लिश द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस by healing.
and that ability is simply repairing mechanism. तो ये दो चीजें एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है ऑफर करता है. नाउ coagulation time is about 3 to 10 minutes depending upon the degree of wound. 3 से 10 मिनट के अंदर coagulation हो जाना चाहिए. And according to Macfarlane theory of blood clotting या blood coagulation, it's a cascade effect mechanism. Now many times I have used this word. According to the Macfarlane theory of blood coagulation, it's a cascade effect mechanism in which around 13 factors get engaged one after the other, without being interfered. है ना. मैकफर्लिन ने समझाया था ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म और उन्होंने ये बात रखा था कि ये पूरा एक लगातार वंस इट इज बीइंग ड्रिवन ट्रिगर्ड इट विल वर्क आउट एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन और तभी वो काम रुकेगा. दैट्स द कैस्केड इफेक्ट मैकेनिज्म जिसमें एक के बाद एक 13 फैक्टर्स एंगेज होते जाते हैं, प्रोटीन फैक्टर्स, और फाइनली बीच में कहीं भी वो इंटरफेयर नहीं होता. Out of 13 factors, 4 are primary and rest 9 factors are secondary. The primary factors are, रोमन लेटर्स में जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं वही है फैक्टर्स. सबसे पहला फैक्टर है फिब्रिनोजेन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, thromboplastin, and the fourth factor is calcium. But the first 3 are proteinaceous. And the fourth factor is inorganic cation, है ना. प्रोटीनेशियस, जो रेस्ट सेकेंडरी 9 फैक्टर्स हैं उनमें से आपको 3 ही याद रखने हैं, है ना, जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ हीमोफीलिया.
है ना. तो आउट ऑफ 9 फैक्टर्स एज सेकेंडरी, factor 8, factor 9 and factor 11. Factor 8, AHG, PTC, PTA. Anti-hemophilic globin. Globulin. Anti-hemophilic globulin. Plasma thromboplastin cofactor. And this is plasma thromboplastin antecedent. Plasma thromboplastin antecedent. Now, either of them are involved in respective hemophilia. Hemophilia A type, B type and C type. %, है ना, and this is around 19%, and the rarest 1% is hemophilia C, जिसमें से हीमोफीलिया बी को जो है क्रिसमस डिजीज कहते हैं, being discovered in a Christian family for the first time, and most of the sufferer peoples are from hemophilia A, first reported in the royal family of Queen Victoria of England, hence called royal disease. Hemophilia is a all over called royal disease. बाकी इनके लिए हम in general कहते हैं it's a disease where bleed until death. Bleed until death. तो आज मैं अगले थोड़ा 15-20 मिनट में ये पूरा कवर करूंगा, मैकेनिज्म और रिलेटेड सारी बातें, विद स्पेशल फोकस ऑन व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स. ठीक है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन, मतलब हीमोफीलिया, और मैं आपको एनसीईआरटी में सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस 12th क्लास में 2 ही बीमारी बताई गई है, लेकिन मैं 7 बीमारियों के ऐसे लिस्ट जिनके नाम का इस्तेमाल करके सेक्स लिंकेज और इनहेरिटेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं ऑप्शंस में, वो आपको याद आज करा देंगे. और उसके बाद हम शुरू करेंगे अबाउट ह्यूमन हार्ट. तो आज ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, कंडक्टिंग सिस्टम तक पढ़ लेंगे. नेक्स्ट क्लास कार्डियक साइकिल और पूरा रेस्ट खत्म हो जाएगा, और फ्राइडे को ईसीजी, एक क्लास बैठ के सिर्फ ईसीजी पढ़ाएंगे, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. तो दिस वीक यू आर गोइंग टू कवर द चैप्टर, और अगले वीक 3 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे एलवीएस, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीज. उसमें जो टॉपिक इम्यूनिटी है, तो बिफोर दीपावली हॉलीडेज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा. आया समझ में? डे आफ्टर टुमारो जो आपकी क्लास रहेगी, उसमें आप लोगों को जो है A3 साइज की 3 शीट्स मिलेंगे एक साथ स्टेपल हुए, उसमें पूरा इम्यून सिस्टम लिखा हुआ है, हैंडमेड राइटिंग विद डायग्राम्स, कंटेंट्स, एवरीथिंग, कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, तो दिस संडे आप अपने घर पे एक बार बैठ के पढ़ के आए, जिससे मैं मंडे जब स्टार्ट करूं चैप्टर इम्यून सिस्टम अंडर द टॉपिक लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम, सिनॉप्सिस में आपको लिखवाई दिया है, राइट. तो आज का क्लास, दिस मॉर्निंग व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ blood and its property, one of the prime property the blood exhibit as a preventive role, as a property of blood plasma, and it's simply a type of inflammatory response.
वो कैसे, वो तो मैं डायग्राम में अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये बात मेंशन्ड है, द डैमेज टिश्यू रिलीजेस अ फैक्टर। व्हाट इज दैट फैक्टर? क्योंकि टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं मास्ट सेल्स। क्या मौजूद होते हैं? दे गेट एक्चुअली डिस्ट्रॉयड, एंड बाय डिस्ट्रॉइंग अलोंग विद सम प्लेटलेट्स, जब टिश्यू डैमेज होता है तब वो एरिया थोड़ी देखता है, वहां तो ब्लड वेसल सप्लाई, जो भी अंडरलाइंग लेयर्स है, वो सब डैमेज हो जाता है अचानक से, सबक्यूटेनियस लेयर्स। तो डैमेज ब्लड वेसल्स में मौजूद प्लेटलेट्स भी बर्स्ट आउट हो जाते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और सारे प्लेटलेट्स को और अट्रैक्ट करने के लिए केमिकली हिस्टामिन, क्योंकि इसके रिलीज होने से क्या होता है उस एरिया में, मैं डायग्राम से समझाऊंगा। एंड दैट्स हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड दैट इंजुरी बाय एन इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स with a motive of preventing the blood loss, followed by later on समय के साथ heal up करके, ड्राई करके उस सरफेस को रिकनसाइल कर देना, जिससे कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस था वो रीएस्टैब्लिश हो जाए। नहीं तो हमेशा बॉडी में एक ओपन चैनल बन जाएगा फॉर इन्फेक्शन। और अगर आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जब भी चोट लगता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि वो ड्राई होके पूरी तरह हील अप हो, तब तक आसपास, है ना, एक पतला सा फ्लूइड निकलता रहता है सीरम, और आसपास का एरिया व्हाइटिश अपीयरेंस आता है। दैट शोज कि बैक्टीरिया एयर में जो मौजूद है, दे आर ट्राइंग टू एंटर, लेकिन थैंक्स टू अवर बॉर्डर लाइन, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो हमारे मौजूद है, कौन? माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस, द एक्चुअल सोल्जर्स, है ना, हु इज रेडी टू गेट मेटायर। अरे यस और नो, ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो दैट्स दे कॉम्बैट वायरुलेंट बैक्टीरिया को सरफेस पे ही रोक देते हैं, और एनकाउंटर करते समय अगर उनकी डेथ भी हो जाए कोई बात नहीं है, बट दे विल डेमोलिश, they will also demolish the bacteria, मतलब pathogen cells, or together that mixture appears in form of pus, together they appear in form of pus. Clear? ये सबने लिख लिया? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेमेशन एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी भी तरह का, मतलब व्हेन वी विल लर्न एलर्जी, इम्यूनिटी में जब मैं एलर्जी पढ़ाऊंगा, आई हैव टू मेंशन रिगार्डिंग इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वही इन्फ्लेमेशन जरूरत से ज्यादा ओवरहेलमिंग जब एक्सप्रेस होता है, दैट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कॉल्ड एलर्जी इन जनरल। तो एनी पर्सन हैव अ फिजिकल इंजुरी लेयर बाय ओजिंग ऑफ ब्लड, जहां भी सरफेस डिस्ट्रॉय हुआ है, रिजल्टेंट वहां पर oozing out of blood, है ना, bleeding might have occurred, तो soon क्या होता है, the body respond by inflammatory response. What is that? उस एरिया में मौजूद ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो भी डैमेज हुए हैं। डैमेज ब्लड वेसल्स, तो आसपास के जो
सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू है उनमें मौजूद इमोबिलाइज्ड बेसोफिल्स यानी मास्ट सेल्स है ना, द डैमेज टिश्यू मास्ट सेल्स जिसका हिस्सा था, सून रिलीज्ड हिस्टामिन, क्या रिलीज हुआ होगा, एंड ऑन रिलीज ऑफ हिस्टामिन 4 characteristic feature happens to occur at the site of damage injury. Swelling, है ना, flow of blood increases, है ना, डायलेशन, क्योंकि हिस्टामिन एक्ट एज अ डायलेटर, तो वो डायलेट करके फ्लो ऑफ ब्लड वहां बढ़ा देगा जिससे प्लेटलेट्स वगैरह आ सके, तो स्वेलिंग, फ्लो ऑफ ब्लड, रेडिश अपीयरेंस एंड अ लोकल पेन, जहां भी सरफेस पे चोट लगता है आसपास अगले 2-3 दिन तक थोड़ा एक दर्द बना रहता है अनटिल एंड अनलेस, है ना, तो लोकल पेन. तो दीज आर दी 4 प्राइम प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय इचिंग, थोड़ा बहुत इचिंग होता रहेगा चारों तरफ जब तक वो सूखता है. तो दिस आर दी 4 to 5 प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. लेकिन मेन क्या होता है हिस्टामिन के वजह से, ये सब तो अपनी जगह है एविडेंसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. प्लेटलेट्स गेट अट्रैक्टेड and burst to release. वो तो पूरे 9 फैक्टर्स बनाते हैं. कितने फैक्टर्स, क्योंकि 4 फैक्टर्स तो सब ब्लड में है. These are all present in, मतलब सॉरी, the out of those 10 फैक्टर्स ये सिर्फ प्लेटलेट से आएगा इन 4 फैक्टर्स में से. बाकी सब कहां मौजूद है, ब्लड में. 13 में से 10 फैक्टर्स कौन बनाते हैं, प्लेटलेट्स अकेले खुद बना लेते हैं. बाकी जो है ये 3 फैक्टर्स ब्लड में होते हैं. सबको आया ये प्रेजेंटेशन समझ में, ये मेंशन कर चुका था मैं, लेकिन आज वो समय है कि हम उसको देखें. तो जैसे ही ये इवेंट होगा, प्लेटलेट्स गेट अट्रैक्टेड एंड बर्स्ट टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्या रिलीज होगा, and thromboplastin is thereafter responsible to convert prothrombin. See the sequence, cascade effect begin. Prothrombin is converted into thrombin in presence of calcium. तो 3 तो तुरंत इस्तेमाल हो गए आउट ऑफ द 4 फैक्टर. बाकी सब एलाइड क्लासिकल और अल्टरनेट पाथवे से काम करते हैं. इसमें अगर मैं मर्ज करना चाहूं इस एक्सप्लेनेशन को, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन ना आया है ना आएगा. आ रही मेरी बात समझ में. ये जो खास इवेंट है इसमें दोनों तरफा अल्टरनेट क्लासिकल पाथवे 2 होते हैं और अदर 9 फैक्टर्स गेट इन्वॉल्व सेकेंडरीली, एडिशनली. लेकिन मेन थीम रोल जो है इन चारों का है, हेंस दे आर कॉल्ड प्राइमरी फैक्टर्स. तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं अपने लेक्चर को कवर कर रहा हूं. और दिस इज द रोल ऑफ सो कॉल्ड द फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द ब्लड अनटिल एंड अनलेस दे आर, तब तक वो प्लाज्मा कहलाएगा. और सून व्हाट एवर हैपेंस, साइड से जो फ्लूइड येलोइश निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज द सीरम. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कन्वर्ट करता है, एंड देन थ्रोम्बिन एक्ट एज अ कन्वर्टर ऑफ द ग्लोबुलर फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, जो आगे चलकर एक मैश नेटवर्क बनाएगा. एंटेंगल्ड आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस फाइबर्स इज इक्वल टू क्लॉट scum. What is clot or scum? It's the entangled mesh network of RBC, WBC and fibers. क्योंकि प्लाज्मा तो सीरम के फॉर्म में फ्लो हो जाएगा.
तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको बस मैं तो क्या कर रहा हूँ, यही स्कैन कर ले किसी किताब से और एक्स वाई जेड आपको फिलअप करने के लिए बोल दे, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में कैल्शियम किस स्टेप में इस्तेमाल हो रहा है. नाउ क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स आर, ये सबने लिख लिया था. क्वेश्चन आता है कि आज हम लेबोरेटरी में जो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं फॉर कीपिंग दी अनकोगुलेटेड ब्लड इन दी टेस्ट ट्यूब फॉर टेस्टिंग, तो उसमें क्या बोलते हैं एक्चुअली आउटसाइड द बॉडी क्या किया जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म. तो ब्लड में मौजूद कैल्शियम को बाय यूजिंग सम चिलेटिंग एजेंट, बाय यूजिंग सम, ठीक है, जो कैल्शियम को पार्शियली बाइंड कर ले फॉर अ वाइल. आया सबको समझ में? चिलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हुए टू ब्लॉक कैल्शियम, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा एंड हेंस द क्लॉट डजंट अकर्ड आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब. वो कौन से हैं एजेंट्स वो तो मैं अलग से ऐसे लिखवा दूंगा, लेकिन बॉडी में ब्लड कोआगुलेट क्यों नहीं करता व्हाइल इट मूव्स अंडर प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल इन जनरल. अभी मैं एक ऑर्थोडॉक्स बात कर रहा हूँ, हालांकि इंजुरीज, ब्लड प्रेशर चेंजेस है ना, फाइन ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और तब जो थ्रोम्बस बनता है, दैट्स एन अनदर थिंग. लेकिन इन कैजुअल जब हम एक हेल्दी बॉडी की बात कर रहे होते हैं तो वही नेचुरली ब्लड कोआगुलेट क्यों नहीं करता इनसाइड द बॉडी. तो हेपरिन का क्या रोल है, ठीक है. Blood coagulations related. Next pattern question. First of all, vitamin K is required for synthesis of prothrombin in liver. Vitamin K is required for synthesis of क्योंकि a person if lacking vitamin K may also lead to delayed blood clotting, है ना. Number of platelets is less than 1.5 lakhs is a sign of thrombocytopenia, is also characterized by delayed blood clotting, hemophilic symptom. But these are temporary, है ना, could be managed. इसलिए तो आखिरी में हम देखेंगे हीमोफिलिया which couldn't manage because it's a genetic disorder, the gene pool is being disturbed, the aberration has occurred inside the genotype, जिसको जाके अल्टर करके इंसान आउटसाइड द बॉडी लैब में जो टेक्निक है जीन थेरेपी का, मतलब मैं लेट टॉक समथिंग प्रैक्टिकल, अभी उतना एडवांस नहीं है कि ये सब कर सके, तो उसको पूरी तरह अप्रूट नहीं कर सकते. लेकिन बाकी जो डिलेड ब्लड क्लॉटिंग के एस्पेक्ट्स हैं तो इनडायरेक्टली विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड ब्लड क्लॉटिंग. क्यों? क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई तो खुद विटामिन के कहाँ स्टोर होता है, इट्स लिपिड बेस्ड विटामिन स्टोर्ड इन लिवर इटसेल्फ, लिवर में स्टोर होता है. टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था कि किडनी इज नॉट अ सोर्स ऑफ, तो आंसर था एंजियोटेंसिन 1. तो बाकी जो दो ऑप्शंस में रेनिन और इराइथ्रोपोइटिन तो समझ में आता है, बट साथ में जो है विटामिन डी का, किसका, वाटर सोल्यूबल विटामिन, सॉरी फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन डी, यस और नो. तो लेकिन वो किडनी में स्टोर होता है, किडनी के मैट्रिक्स में, कॉर्टेक्स एरिया में, कॉर्टिकल सेल्स, वहां के फिब्रोब्लास्ट सेल्स में स्टोर रहता है विटामिन डी. तो है ना 125 डी हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, उसका पूरा केमिकल फॉर्मूला नॉमेनक्लेचर के साथ लिखा था. तो इसलिए मतलब वो तीनों आंसर नहीं थे, आंसर था एंजियोटेंसिन 1. आया सबको समझ में? तो क्या बोलते हैं, वही चैप्टर डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाते हुए बता दिया था अंडर विटामिन की किडनी में स्टोर होता रहता है और समय समय पे जो है वो कैल्शियम को रोकने में काम करता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा वहां पर हाइपर विटामिनोसिस हो गया
तो किडनी स्टोन बन सकता है। क्या बन सकता है? क्योंकि उनकी टेंडेंसी है ना लिपिड को स्टोर होने का, लिपिड डेरिवेटिव स्टोर होता है आसानी से, वो डिसॉल्व होकर निकलता भी नहीं है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर विटामिन डी किडनी के मैट्रिक्स में स्टोर हो गया तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा। तो कुछ लोगों को जो आदतन मतलब मेटाबॉलिक फॉल्ट के कारण क्या है, किडनी स्टोन बनते ही रहते हैं। आ रहा है सबको समझ में? मतलब मेडिकल फ्लॉज की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट केसेस। लाइफस्टाइल डिजीजेस, किसी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हेल्दी डाइट के नाम पे मतलब हमेशा बोलते हैं ना अमृत भी जहर बनता है ना। एवरी मॉर्निंग अंडर हाई लाइफस्टाइल हैविंग अ कप ऑफ या ग्लास ऑफ एनी टाइप ऑफ जूस, ठीक है, जिसमें सिट्रिक एसिड का कंटेंट ज्यादा हो, है ना, कि संतरे का जूस और मौसम्बी का जूस जो भी है इस तरह से लेते रहते हैं। तो 2-3 साल से लगातार मतलब एक भी दिन मिस नहीं किया टू हैव अ थॉट ऑफ हेल्दी डाइट, लेकिन पता चला चौथे साल है ना कमर में दर्द चालू। तो जितना वो पीने में कोई दिक्कत नहीं रोज, लेकिन उतने ही डाइल्यूट करते हुए पानी भी पीना चाहिए। तो दिन भर क्या होता है, वर्कआउट किया खूब और फिर वो संतरे का भी जूस पी लिया, पानी उतना नहीं पिया, तो धीरे धीरे सिट्रिक एसिड कौन along with oxalic acid, along with they make salts, and those salts deposit in form of those renal calculi। तो ये हर किसी के साथ तो जरूरी नहीं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब वही मैं कहना कि इसके बाद सारी मेडिकल एप्लीकेशन चालू हो जाता है। थ्योरेटिकली मैं अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने कि अभी अभी जिस विटामिन के बारे में बात किया वो उसको रोकना भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पे प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस लिवर से होकर ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते रहना। एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट, heparin blocks the conversion of, है ना, heparin blocks the conversion of prothrombin into thrombin। This is the correct statement। इस पूरे मैकेनिज्म में हेपरिन कहां ब्लॉक कर सकता है? ओवर हियर। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, पहले तो मैकेनिज्म बता दिया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ये इंटरनल फैक्टर है रोकने का नेचुरली, और ये एक्सटर्नल तरीका है ना, दैट इज इन विट्रो वे, इन विट्रो मैकेनिज्म टू स्टॉप कोagulation। So finally, commercially, use of following reagents act as anticoagulant for blood outside the body। Commercially, use of following reagents act as anticoagulant for blood outside the body। है ना, इथिलीन, है ना, डायमाइड टेट्राएसिटिक एसिटेट, EDTA, ऑक्सलेट, सिट्रेट, अब इसमें भी गौर करने वाली बात, ठीक है, क्या बोलते हैं, अब जैसे ये यहां तक का क्वेश्चन नीट पैटर्न हो गया, या कैजुअली आज तक के जितने भी नेशनल एग्जाम्स अलग अलग नाम से हुआ करते थे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप कर दिया अकॉर्डिंगली, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया जाए इसी क्वेश्चन में। सबको यहां तक पहले क्लियर है?
एक सिंपल सा टॉपिक था ब्लड कोआगुलेशन, एनसीईआरटी का मैं पैराग्राफ भी रीड कर दूंगा, सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं उसके। लेकिन इफ यू गो थ्रू द 10 इयर्स क्वेश्चन पैटर्न्स इन एनी एग्जाम्स, है ना, राइट बिगिनिंग फ्रॉम 2006-7 से लेके 2017 तक, तो स्पेशली एम्स में अब बस इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा कि ये तो कार्सिनोजेनिक है, क्या है? ठीक है, और दीज आर नॉन कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तो पॉइंट टू बी नोटेड इज used in collecting test tubes in diagnostic lab। डायग्नोस्टिक लैब में जो छोटे छोटे कलेक्टिंग ट्यूब्स होते हैं, जिसमें जो है 5 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है एट ए टाइम, 5 से 10 ml, है ना, उनके अंदर इसको इस्तेमाल, क्योंकि अब आउटसाइड द बॉडी ब्लड इस्तेमाल होना है फॉर प्रायर एग्जामिनेशन ऑफ द कंपोजिशन एंड सो कॉल्ड एनालिसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ एनी सच डिसऑर्डर और नॉट, तो वो कार्सिनोजन शरीर में थोड़ी जा रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल किसमें होगा? यूज्ड इन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट है और ये काफी समय तक, करीब 2-3 दिन तक अपना असर बनाए रखता है, क्योंकि यू नेवर नो कि ब्लड कलेक्ट होके कितने दिनों में एक्चुअली व्हाट आर दी अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। कुछ ऐसी बातें हैं, मैंने कहा ना, जब फील्ड में पहुंचोगे तभी समझ पाओगे, यहाँ मैं आज बोल के भी तुम्हें समझा के भी क्या हासिल हो जाएगा? पीएमटी का क्वेश्चन ये तो होना नहीं है, मेरी बात आई समझ में? वो तो बस मैं अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा आगे तक बात कर लेता हूँ। कोई ब्लड कुछ खास तरह के टेस्ट है, यानी बॉम्बे में होगा, बॉम्बे में आज शाम की फ्लाइट से भी जाएगा तो कल 2-4 घंटे में जो भी पहुंचेगा, और रात को थोड़ी बैठ के टेस्ट होगा, टेस्ट तो अगले दिन सुबह होगा, तो 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, वॉट एवर सो। तो तब तक ब्लड का नॉन कोआगुलेटेड रहना जरूरी है, एंड इट नीड स्ट्रॉन्ग चिलेशन, हेंस इट इज बीइंग यूज्ड। आया समझ में? क्लियर? जबकि इनका इस्तेमाल used in blood polybags, used in for transfusion, for transfusion। किसी ने ब्लड डोनेट करने गए तो जो पॉली बैग आता है ब्लड कलेक्शन करने का, उसके अंदर ये रहते हैं। आया सबको समझ में? क्योंकि उसको कलेक्ट करके फिर कुछ समय बाद ही किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, विद इन अ डे और 2। आया सबको समझ में? तो इट इज गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम, और वो कोगुलेट नहीं होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एम्स। तो किसी भी टॉपिक में, मतलब बात सिर्फ आज के चैप्टर इस टॉपिक का ही नहीं है, टॉपिक वही रहेगा, बस डिस्कशन भी वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है विच मेक्स दैट एग्जाम लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि 60 क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी के, 40 क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं, 20 असर्शन रीजन आने हैं, तो 40 मतलब पूरा कोर्स पढ़ने के बाद 20 और 20 बॉटनी में इक्वली डिवाइड कर रहा हूं मैं, इक्वल आएगा कि नहीं आएगा कौन जान रहा है, टू बी डेल्ट एज अ होल बायोलॉजी। तो भले ही मैं आपको जूलॉजी हिस्सा पढ़ा रहा हूं, लेकिन अक्सर मैं आपसे डिस्कस करता हूं, यू हैव टू टेक 90 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच, और उसमें मेरा जो 45 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 100% मैं कोशिश करूंगा कि कवर करूं पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, और वही चीज पढ़ने का ट्रैक आपको भी डे 1 से फॉलो करना है। कोर्स तो किसी दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन पता चला क्वेश्चन पैटर्न नहीं खत्म हुआ, तो दैट इज मोर प्रॉब्लमैटिक, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट योर blood coagulation strictly speaking, but now we are going to take a different stroke। सबको ये आया समझ में everyone? कि suppose an injury happens to occur, that area is being damaged and released tissue damage release the histamine, which provokes that coagulation mechanism as an immune response, but it is going to be propagated by the
clotting cells, platelets, thrombocytes by beginning that process. And ये additional बातें आपके सामने आया. So in next 15 minutes, let us go through a very interesting aspect of our discussion, that is under different stroke. Let us go through a question format. What is hemophilia? What is? हालांकि कंपैरेटिव स्टडी कराया था, बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें इसके बारे में बताया गया था, बट दे हैज कम टू डिस्कस अबाउट हीमोफीलिया स्पेशली. It's a bleeder disease where the sufferer fail to exhibit clotting of blood by a simple prick. Yes, it's a bleeder disease where the sufferer failed to exhibit clotting of blood by a simple prick and bleeds until death. Moreover, it's a genetic disease of human gene pool. Moreover, it's a genetic disease of human gene pool characterized by sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance. Non-Mendelian inheritance. ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर्स द सफरर वुड आइदर indeed fail to exhibit the property of clotting of blood. सिंपली एक प्रिक, चोट तो बहुत दूर की बात है, एक प्रिक लग गया तो वही धीरे धीरे बोन मतलब 15 दिन बाद डेथ हो जाएगा. मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करो कि सपोज दैट पर्सन डजंट गेट एनी मेडिकल रेमेडी, है ना, वो रुकेगा नहीं, वो निकलता ही रहेगा. तो 15 लीटर ब्लड धीरे धीरे ऊज आओ, सॉरी 5 लीटर ब्लड में से 2 ही लीटर ब्लड तो बॉडी से निकलना है, तो 15 डेज बाद जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा शरीर. जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ वुंड होगा उतना तेजी से ब्लड लॉस होगा. तो वट एवर सो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, तीनों में ही ये प्रॉब्लम आना है मोर और लेस. लेकिन जीन पूल में तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तीनों तरह का 80% ज्यादातर वही होता है. फैक्टर 8 एब्सेंट, 20% में 19% ऐसा होता है, और 1% चांस होता है रेयरेस्ट ऑफ द हीमोफीलिया सी टाइप. So whatever the hemophilia type, all passes genetically in the gene pool characterized by a special pattern of inheritance, what we call sex-linked inheritance. So today's discussion is how hemophilia exhibit sex-linked trait. Being a sex-linked trait, what does it mean?
What is sex linkage? A trait, बायोलॉजिकल कैरेक्टर. ट्रेट मीन्स अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, अल्टरनेटिव कैरेक्टर. तो ट्रेट बोलूं कैरेक्टर बोलूं एक ही बात है, मोर और लेस. अ ट्रेट हुज जीन ऑफ कंट्रोल present on sex chromosome. ठीक है ना. अ ट्रेट हुज जीन ऑफ कंट्रोल, उस ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम एंड शो अ peculiar pattern of transfer from gender parent टू जेंडर ऑफस्प्रिंग. ये मैटर करता है. एक बहुत जनरल बात हो रही है. इस लैंग्वेज में मैं लिखवा दे रहा हूं. यू विल नॉट फाइंड सच लैंग्वेज इन एनी बुक इन कैजुअल. वो थोड़ा सा पेचीदा तरीके से लिखा रहता है. लेकिन जो फंडामेंटल बात समझाना चाह रहे हैं वो थोड़ा हम कैसे समझ सकते हैं बाय अवर कैजुअल डिस्कशन एंड टॉक. उसको गौर करिएगा. व्हाट इज सेक्स लिंकेज? आई एम कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज ऑल्सो. कोई भी बॉडी का कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग. मैं तो हीमोफीलिया जो पढ़ा रहा हूं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में नोन कैरेक्टराइज जेनेटिक डिसऑर्डर है. अरे मैं तो कह रहा हूं कोई भी एक्सवाई ड्रोसोफिला का आई कलर हो या कुछ भी हो, मतलब सेक्स लिंकेज का क्या मतलब है? आज ये भी आप सीख लो, 2 मिनट का चीज है बस. तो अ ट्रेट हुज जीन ऑफ कंट्रोल प्रेजेंट ऑन out of the whatever chromosomes are of two types on the distribution of the genes, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोसोम्स पे वो सारे जीन्स होते हैं जो बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर्स. कौन से कैरेक्टर्स? और एक ऐसे क्रोमोसोम को स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम नाम इसलिए दे दिया क्योंकि उनपे मौजूद कुछ जीन्स, सारे जीन्स नहीं, कुछ जीन्स बॉडी के ऐसे बॉडीली कैरेक्टर्स. एक्चुअली किसी ऑर्गेनिज्म का जेंडर कैरेक्टर्स जो भी है, मेल फीमेल के, प्यूबर्टी के, वो भी बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं. लेकिन उसको तवज्जो, इतना सिग्निफिकेंस क्यों देते हैं हम? उन कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन के साथ अचानक से गिवन उस ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में शरीर को दो तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. हेंस दे आर नॉट सिंपली बॉडी कैरेक्टर्स, दे आर सम स्पेशल बॉडी कैरेक्टर्स, प्यूबर्टल कैरेक्टर्स, जो अचानक एक पॉपुलेशन को दो सेक्शन में बांट देते हैं. द वर्ड सेक्स मींस टू सेक्शंस, मेल एंड फीमेल. तो ऐसे ट्रेट और उनके जीन्स को कंट्रोल करने वाले जीन्स जिस क्रोमोसोम पे मौजूद है उनको ही हम क्या नाम दे देते हैं? सेक्स क्रोमोसोम. लेकिन क्या सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद सारे के सारे जीन्स सेक्सुअल ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं? नहीं, कुछ ही करते हैं. बाकी तो बॉडी के दूसरे जैसे कैरेक्टर्स ऑटोसोम्स के लिए मौजूद है, वैसे इन पे भी मौजूद है. लेकिन क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, अ ट्रेट हुज जीन ऑफ कंट्रोल प्रेजेंट ऑन, एक तो क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम का पैसेज होना मतलब मूवमेंट, ट्रांसफर होना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, थोड़ा सा पिकुलियर है. होमोलॉगी के साथ पास नहीं होता. कैसा नहीं पास होता? नॉन होमोलॉगी के साथ पास होता है. कैसे पास होता है? आई एम गोइंग टू प्रेजेंट. मैं भी पहले स्टेटमेंट्स दे रहा हूं. तो वही बात तो यहां लिखवाया है. एंड शो अ पिकुलियर पैटर्न ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम जेंडर पेरेंट टू जेंडर ऑफस्प्रिंग. देखना पड़ेगा कि पेरेंट का जेंडर क्या था, मेल से फीमेल में क्या पास हो रहा है, और फीमेल मदर पेरेंट से सन ऑफस्प्रिंग में क्या पास हो रहा है. दिस इज द क्रिस क्रॉस पैटर्न. दिस इज द, इसमें जेंडर मायने रखता है कि पेरेंट का जेंडर क्या था, किस जेंडर पेरेंट से जेंडर ऑफस्प्रिंग कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पा रहा है, और उस सेक्स क्रोमोसोम पे जीन ऑफ कंट्रोल है कि नहीं है. बहुत सारी बातें आती है. तो देयर इज अ पिकुलियर रिलेशनशिप, लिंकेज. क्या कहते हैं उसको? लिंकेज. एवरीवन क्लियर? बिल्कुल. ये स्टेटमेंट समझ में आया? ये डेफिनेशन था सेक्स लिंकेज का.
आया ये प्रेजेंटेशन? दिस इज द कैरियोटिपिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन ह्यूमन बीइंग आइदर एज अ मेल एंड फीमेल. 22 autosomes and one pair sex chromosome. 22 autosomes and one pair sex chromosome. Perfect karyotype of gender of the parents as a male and female. The point to be noted, क्या देखा गया है कि क्रोमोसोम्स दो तरह के हैं, लेकिन जो ऑटोसोम्स हैं, ये जो आपको यहां दिख रहा है, दे आर होमोलोगस, दे आर ऑल होमोलोगस. लेकिन जो आखिरी पेयर है, 23rd पेयर इन द सेट ऑफ ह्यूमन जीनोटाइप और कैरियोटाइप, दैट इज द वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. That is little bit different in male and female. 22 autosomes मेल और फीमेल में इक्वली होमोलॉगी टू एग्जिबिट मेंडेलियन कैरेक्टर, टू एग्जिबिट मेंडलिज्म फॉलो करना. अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, वन जीन वन कैरेक्टर. ठीक है, सारे जितने जीन्स इस पे है उतनी जीन्स इस पे होंगे, सेम लोकस, इसलिए होमोलॉगी. यस और नो? लेकिन 22 ऑटोसोम्स जो है वो तो ठीक है. व्हाट अबाउट द लास्ट single one pair sex chromosome? It is different in male and female, and it is decided by the gender body of the parent. If it is the male gender, it is non homology. It is, ये कैसा है? नॉन होमोलोगस. जबकि फीमेल्स में एज यूजुअल जैसे ही ऑटोसोम्स वैसे ही है. तो फीमेल बॉडी तो मेंडलिज्म फॉलो करेंगे, लेकिन डेविएशन, मतलब ना डेविएशन, विचलन जो है, मतलब डेविएट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलिज्म, वो कौन एक्चुअली शो करेगा? मेल बॉडी इन अ गिवन ह्यूमन पॉपुलेशन जीन पूल. तो देयर आर सम ट्रेट्स, और उनको कंट्रोल करने वाले जीन किस क्रोमोसोम पे हैं? आइदर ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम. अगर सेक्स क्रोमोसोम पे है तो फिर ये देखा गया है कि दे डजंट show same result of reciprocal cross. They doesn't show the same result of. पहले ये प्रेजेंटेशन सबको आया समझ में? Now in nature, according to Mendel, results of reciprocal cross, कैसा क्रॉस? मस्ट बी सेम. मतलब उनका तो कहना है बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि उनको तो दो ही बातें समझ में आई थी, वन जीन वन कैरेक्टर, अ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय टू अलील्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो उन्होंने कहा सीधा वन कैरेक्टर एट अ टाइम उन्होंने कंसिडर किया, और रिजल्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस मस्ट बी सेम. व्हाट डज इट मीन? कि एक बार किसी कैरेक्टर को एक जेंडर में माना, आया समझ में? रिजल्ट सेम आएंगे. लेकिन ये किसके लिए बात सही है? पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज एक्चुअली करेक्ट फॉर बायसेक्सुअल, बाय है ना, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. यस और नो? सेल्फिंग. और मेंडल ने एक सेल्फ फर्टिलाइजिंग, यस और नो, बाइसेक्सुअल प्लांट एज अ स्पेसिमेन बॉडी गार्डन भी उठा के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बाय मेकिंग इट वॉलेंटरीली यूनिसेक्सुअल, बाय मेकिंग इट, यस और नो? क्लासिकल जेनेटिक्स फंडामेंटल्स. तो उनके हिसाब से तो एक्चुअली तो सही है ये, नेचर में ये. और ये बात कुछ हद तक, और इवन मे बी ट्रू, मे बी ट्रू फॉर, मे बी ट्रू फॉर, बशर्ते, मतलब ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इफ, उसमें भी मतलब गौर करने वाली बात, इफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व. कैसा? कुछ हद तक ये यूनिसेक्सुअल मेंबर्स के लिए भी बात सही है. मतलब वो सारे जीन्स जो ऑटोसोम्स पर हैं, दैट इज इफ द जीन ऑफ कंट्रोल, किसी भी ट्रेट का जीन ऑफ कंट्रोल, इफ द जीन ऑफ कंट्रोल इज प्रेजेंट ऑन autosomes, because they are alike,
यानी जिसे हम होमोलॉगी कहते हैं, क्या कहते हैं? होमोलॉगी इन बोथ जेंडर, इन बोथ। इसलिए उस कैरेक्टर को फिर से चाहे मेल में मान लो या फीमेल में मान लो, आइदर वे, वहां तक भी ठीक है। शायद रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आए, मेंडलिज्म फॉलो होगा। लेकिन आज हमने जिस डिफरेंट स्ट्रोक में बॉडी के एक डिसजेनिक ट्रेट, कैसा ट्रेट? a trait which is going to create some disorder, casualty to the body under certain situation, एक ऐसा ट्रेट जो बॉडी कंट्रोल एग्जिबिट कर रहा है, उसके अंदर है, बियर कर रहा है, उसे एग्जिबिट भी कर रहा है विद सम प्रॉब्लम, उसको पढ़ रहे थे और उसको पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि उसका जो जीन है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो जाए, चाहे नॉर्मल हो या डिफेक्टिव हो जाए, उस जीन को उसका एड्रेस कहां मिला पैकिंग के दौरान? एक इंसान के पूरे कैरियोटाइप में एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पे मिला। किस सेक्स क्रोमोसोम पे मिला? अभी मैं लिखवा रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम पे। किस पे? लेकिन क्या उस सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, उसका स्टेटस ह्यूमन पॉपुलेशन में मेल फीमेल में एक जैसा है? नहीं। तो अब उस ट्रेट और उसको कंट्रोल करने वाला जीन है ना, उसका पैसेज होना, ट्रांसफर होना जीन पूल के अंदर है ना, विल शो सम पिकुलियर पैटर्न, एक खास तरह का संबंध दिखाते हुए, हिंदी में इसको सह लगने कहता हूं, लिंकेज शो करते हुए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबको यह आया समझ में एवरीवन? आज आप जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंसेप्ट आज ही पढ़ ले रहे हो गया, बस अब बीमारियों के नाम, डेजिग्नेशन, क्वेश्चन सॉल्व, बाकी ये थ्योरी है, व्हाट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट रिगार्डिंग व्हाट डू मीन बाय सेक्स लिंकेज। तो जरा सा गौर करो, मतलब कुछ चीजें होती है ना, कंसेप्ट कब कब आप कहोगे कि कंसेप्चुअल स्टडी किया। देखो आप, चलो साइटोजेनेटिक्स का भी एहसास करा देते हैं आज। आप एक जानते हो क्रोमोसोम मतलब ये है, ठीक है? The chromatin threads pack themselves with the nucleoside model to make the rod-shaped chromatids, sister chromatids, है ना, well associated by the centromeric position। अब इमेजिन करो, मैंने एक क्रोमोसोम ऐसा बनाया, एक क्रोमोसोम में मौजूद ये रहा वो क्रोमैटिन जीन सीक्वेंस, क्रोमोसोम, जीन, DNA, and this is the sequence. This is the sequence. All are, what is chromosome? Genetic material. What is gene? Genetic material. What is DNA? Genetic material. What is this sequence? Representing genetic material. तो फिर मैं पूछ क्यों रहा हूं? Physical form. कैसा form? What is chromosome? It's a physical form of our hereditary material. Gene is the functional form. अब उस जीन का क्या बोलते हैं, कोडिंग करेगा तो एक्सॉन, नहीं करेगा तो इंट्रॉन। अरे यस और नो, है ना? और स्ट्रक्चरली एक्सॉन का पार्ट अगर चले जाए फंक्शनल, सिस्ट्रॉन हैविंग दोस कंट्रोल जीन्स एंड ऑल, फिर वो फर्दर स्पेसिफिकेशंस है। कमिंग टू द पॉइंट, डीएनए केमिकल फॉर्म in form of sequences, and these are the monomers. These are the monomers. तो भले ही आज मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन आज एक बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि एक इंसान का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेचर ने कितने अल्फाबेट्स में लिखे। देयर आर 4 अल्फाबेट्स ऑफ आवर जेनेटिक लैंग्वेज, यस और नो? लेकिन व्हाट इज आवर डिक्शनरी, व्हाट इज आवर कंप्लीट, दैट इज 3 into 10 raised to power 9 base pairs, 3 बिलियन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। टाइप नहीं, टाइप तो केवल 4 है। इंग्लिश सब्जेक्ट के 26 लेटर्स है, जिनको इस्तेमाल करते हुए 4 दो वर्ड का भी एक लेटर बनेगा, इज ही। अरे यस और नो? मैं तो कह रहा हूं एक लेटर का भी बनेगा, पॉइंट म्यूटेशन, ए ग्रामर में इस्तेमाल होता है ना, यस और नो? आई। सबको आ रहा है समझ में कंसेप्ट? तो नेचर ने, सो कॉल्ड द सुपरनैचुरल पावर, द गॉड वी बिलीव इन,
उसने हर इंसान को उसके जेनेटिक ट्रेट्स के साथ ह्यूमन स्पीसीज के लिए 99.9% एक ही सीक्वेंस देके लिख डाला, यूजिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इज टाइप नहीं पूछा है, जेनेटिक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स टाइप कितने हैं? 4 ATGC। लेकिन उसको एक रेशियो में चारगफ्स रूल के अकॉर्डिंगली यूज करके विद अ मॉडलिंग सेटल ऑफ हेलिकल, यस और नो, दिस इज व्हाट यू लर्न इन बायोकेमिस्ट्री एंड साइटोजेनेटिक्स। दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इंसान के लिए आज क्या फैक्ट है कि हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल कितने कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट से लिखा है, लिख दिया, विद अ स्पेस ऑफ सम पिकोमीटर, यस और नो। और उससे ये लेंथ कितना आया डीएनए का? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर सेट है। आया समझ में? 2.2 जितना भी लंबा है, और उसी के अंदर 98.5% नॉन कोडिंग है, 1.5% जो 1.5% कोडिंग सीक्वेंसेस है, यानी 3 अरब का 1.5% निकालो, 1.5% कितना होता है? उतने बेस पेयर से, उतने, सबको आ रहा है स्टैटिस्टिक्स समझ में? देखो ये होता है एक्चुअल लर्निंग, एक होता है रटना और ऐसी कुछ नहीं आ रहा समझ में लेकिन पढ़े जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक्चुअल बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? 2.2 मीटर के लेंथ का जो हमारा केमिकल फॉर्म डीएनए है, उसके अंदर मौजूद इतने सारे बेस पेयर्स में से 1.5% माइनस कर दो, बाकी 98.5% तो हम सब में कैसा डीएनए है? जंक डीएनए। कैसा डीएनए? कुछ रिपीट होने की वजह से और कुछ नॉन कोडिंग, क्योंकि किसी से टीआरएनए बनेगा, किसी से आरआरएनए बनेगा, किसी से ट्रांसपोजोन बनेगा, मतलब एमआरएनए छोड़कर बाकी कुछ भी बन सकता है। और 50% तो ऐसा है 98.5 में से जिससे कुछ नहीं बनेगा, बिकॉज दे आर रिपीटेटिव डीएनए। कैसे डीएनए? रिपीटेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एसएनपी, पीएनपी। एसएनपी को स्निप डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड देयर आर लॉट ऑफ सच स्टोरीज, पढ़ लेंगे ह्यूमन जीनोम में। अरे सबको आ रहा है समझ में? बट आज ही तुम्हें एहसास हो गया कि उस टॉपिक का भी क्या सिग्निफिकेंस है। कोई भी, मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी चीज कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि थोड़ा सा आपका खुद का इनर कॉन्शियस हमेशा तैयार रखे कि पता नहीं कब क्या चीज कहां लिंक हो जाए, एंड दैट व्हाट विल हेल्प यू फाइनली डे ऑफ रिवीजन, मतलब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, मैं तो आपको सेक्स लिंकेज पढ़ा रहा था और अचानक ये सारी बातें आई है। मुझे लिंकेज शब्द को प्रूव करना है पहले, तब तो सेक्स लिंकेज और अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट लिंकेज? तो 2.2 मीटर में से जो 1.5% माइनस करोगे, जितने बेस पेयर्स का नंबर आएगा, उतने बेस पेयर से एक्चुअली हमारा आज 30,000 जीन्स, कितने जीन्स, उनको पैक किया गया है, उनको, और पैक कर करके सबसे मैक्सिमम जीन पहले क्रोमोसोम पे, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ जीन वाई क्रोमोसोम पे। 2998, 2000 जीन्स, उतने ही अलील्स यहां होंगे, बिकॉज दे आर होमोलोगस। ऐसे करते 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 पैक करते करते आखिरी में कुछ ऐसे जीन्स बचे, है ना, 231 जीन्स, जिनको पैक करके एक खास क्रोमोसोम वाई पे, किस पे, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम विथ लेसर नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, लीस्ट नंबर ऑफ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या सेलिएंट फीचर सही है, यही सब तो लिखा होगा स्टेटमेंट में। अब वही है, एनसीईआरटी रट लिया, अच्छी बात, एक क्वेश्चन आना था, पढ़ के आ गया। या फिर टेक्निकली पूछ ले कि व्हाट इज सीक्वेंस एनोटेशन, व्हाट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और उससे किस तरह की जेनेटिक मैपिंग हुआ था, फिजिकल की जेनेटिक मैप तैयार हुआ था ह्यूमन जीनोम का। ये तो एनसीईआरटी में नहीं समझा है, लिखा तो है। अब आया समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, टॉपिक कोई भी हो, एनसीईआरटी पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रोज आप घर पे बैठ के अपने लेवल पे भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो मेरे पढ़ाने के अलावा, तो आप खुद अपने लेवल पे डेवलप तो करो थोड़ा सा। क्लास में मैं यही तो डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि लिखा क्या है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है और उसमें क्या मोरलेस सही गलत कैसे डिसाइड होगा।
तो नाउ दिस नीड्स लिटिल बिट दैट डिलिजेंस, मेहनत चाहिए इसमें, ये दैट्स दी फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट वी कंसिस्टेंसी की जो मैं हमेशा बात करता हूं। तो 30,000 जीन्स पैक करते हुए, अच्छा अब ये जो पैक हो गए जितने भी जीन्स, मैंने नंबर इसमें बोले, पूरे जर्नी के दौरान जब सेल डिवाइड करता है ये सब इस लगेज में एक साथ पैक हो गए, है ना, लिंक्ड हो गए, क्या हो गए, जो जीन यहां मौजूद है चाहे यहां मौजूद है, लीस्ट लिंक्ड, हाईएस्ट लिंक, यही है ना कंसेप्ट। मोर द डिस्टेंस लेसर द लिंकेज, लेसर द डिस्टेंस, आ रहा है सबको समझ में? चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में यही है पैराग्राफ, कपलिंग रिपल्शन थ्योरी और वो रिकॉम्बिनेशन फलाना ढिमका, यही सब है एवरीवन। तो ये पूरे के पूरे जीन्स क्या हो गए सफर के दौरान, कौन सा सफर, जेनेटिक जर्नी फ्रॉम अ सेल टू सेल, फ्रॉम अ जनरेशन टू इन फॉर्म ऑफ जर्म सेल टू दी नेक्स्ट ऑस्प्रिंग सेल जाइगोट। उस जर्नी के दौरान किसी भी, ये पूरा हमारा जीनोम है, जीनोम का फिजिकल फॉर्म, व्हाट इज जीनोम, द जेनेटिक मटेरियल, द कोडिंग मास्टर मॉलिक्यूल अमंग द फोर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। आधा चैप्टर तो यही साबित करने में चला गया। अरे हाँ कि ना, कौन क्या है और कौन क्यों क्या नहीं है। तो कौन है न्यूक्लिक एसिड, वो भी डीएनए आरएनए, उनमें से कौन डीएनए मोस्ट स्टेबल, वाई, ये वो, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अरे यस और नो, वाह खत्म हो गया कोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर चीज की अपनी मास्टरी होती है, पढ़ने का एक तरीका होता है। सबको आ रहा है समझ में? ये तो मैं अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए एक सुपरफिशियल टच देके ऊपर से आ गया। एवरीवन, सबको आ रहा है समझ में कंसेप्ट? तो मैं वही कहना चाह रहा था कि ठीक है, जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, है ना, उसमें न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म में है डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस। ह्यूमन जेनेटिक्स जूलॉजी के सेक्शन में अब ये कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ जीनोमिक इनहेरिटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और उसके सारे एग्जाम्पल, वेदर इट इज ड्यू टू प्लियोट्रोपिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, सबको आ रहा है समझ में? अलग अलग एग्जाम्पल्स, लीथल जीन्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ऐसे पढ़ना है हमें। बट ऑल आर पर्टेनिंग टू व्हाट, किससे संबंधित है? ऑल आर पर्टेनिंग टू द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द सेल, जीनोमिक इनहेरिटेंस। तो जीनोम का फिजिकल, फंक्शनल, केमिकल, मोनोमेरिक, सीक्वेंशियल फॉर्म, किसी भी लेवल पे चले जाओ, चेंज, वेरिएशन लाने के लिए जो चेंज किसी भी जीनोम के किसी भी लेवल पे आ जाए, द इवेंट इज कॉल्ड म्यूटेशन, द इवेंट इज कॉल्ड। तो पूरी जर्नी के दौरान वो चेंज इन फॉर्म ऑफ सडन जेनेटिक चेंज विद जेनेटिक इफेक्ट कॉल्ड म्यूटेशन कैन अकर एट क्रोमोसोम लेवल, जीन लेवल, जीन का भी, और माइक्रो लेवल, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन सीक्वेंस में एक सिंगल न्यू, यस और नो, it will bring the effect or may not, silent mutation, and if it brings then what are the different mechanism? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आज ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसमें देखने वाली बात क्या थी, एक क्रोमोसोम वन लिंकेज, वन क्रोमोसोम वन लिंक्ड जीन्स, वन लिंकेज ग्रुप। तो व्हाट इज द लिंकेज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग? n इज इक्वल टू 23। जो हमारा जीनोम नंबर है वही हमारा लिंकेज नंबर है। क्या है हमारा? क्योंकि वन क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स वन लिंकेज ग्रुप, one linkage group may have all the number of linked genes which have packed with the nucleoside model while moving from one generation to another. सबको आया कंसेप्ट समझ में? तो पूरे 23 लिंक्ड ग्रुप में से 22 होमोलोगस हैं और एक जोड़ा होमोलॉगी भी शो करता है और नॉन होमोलॉगी भी, but among whom it is decided by a sex of the individual, gender of the individual. किसी को कोई डाउट? क्योंकि both gender exhibit a difference in their composition of sex chromosome, and that's the basis of sex determination. Chromosomal theory of sex determination in human being, XY XX type. XY, where male is heterogamous, female is, किसी को कोई डाउट?
तुम खुद अब बैठ के थोड़ा, वही कह रहा हूं, शांत मन से रिकॉल तो करो, क्या क्या सीखा, क्या और क्या क्वेश्चंस कवर हो गए, पढ़ क्या रहे थे, किस चैप्टर में है, आ रहा है समझ में? सब कंप्लीट हो जाएगा, मुद्दा वो नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट हो जाए, मतलब मेरा ऐसा हमेशा मानना है, जो मैंने कंप्लीट कर दिया हो गया, उसमें नया कुछ बताने का नहीं है फिर। बस अब उसको अराउंड द टेबल यू हैव टू एबल टू कोलैबोरेट एंड कोरिलेट विथ योर प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, और तब जाके आप कंसेप्ट वाइज बाहर निकल के आए, एंड देन यू शुड कम ओवर टू मी फॉर योर डाउट्स, क्या लिंक छूट गया, क्या नहीं आया समझ में। सबको आ रहा है समझ में? और अभी मैं मर्ज कर दूंगा कंसेप्ट ऑफ लैंड हाइपोथेसिस, क्या समझा देंगे यहाँ पर? जहां तक मुझे याद आता है, I have mentioned while we have gone through neutrophils कि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, मेल्स में 1 एक्स। सो दिस इज अ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी, है ना, undistribution of the genetic material where female is genetically superior over male. Now nature has compensated it by neutralizing one of the X chromosome. तो इन सब का संबंध है ना सेक्स लिंकेज से। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है, अचानक ये बात कहां से आ गई? क्योंकि यही तो बात है जो डिसाइड करेगा कि वेदर द मेल विल बी सफरर और नॉर्मल, वेयर एज फीमेल इज यूजुअली आइदर नॉर्मल और कैरियर। एक तो ये है कि ऐसा बोल दिया, स्टेटमेंट रट लिया आपने कि दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, प्रायर कुछ आपको रीजन नहीं पता, बस आप एसर्शन रीजन की तैयारी नहीं कर रहे, बस और कुछ नहीं हो रहा है। देखो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबको बहुत कुछ पता है, सब जो भी है, लेकिन कैसा क्या चीज पता होना चाहिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, वी आर इन अ स्टेट ऑफ 90%, है ना, वी आर प्रिपेयर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन 90%। 100% कोई जज नहीं कर सकता कि हम हर क्वेश्चन तैयार है कि नहीं, लेकिन हाँ, बाय अवर प्रिपरेशन, बाय अवर स्किल्स, वी कैन रीच अप टू 90% ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम आवर टॉपिक। फिलहाल लिंकेज नंबर और ये समझ में आया, और इनमें से आखिरी लिंकेज नंबर जो हमारा 23वें नंबर का, ये एक अलग तरह का लिंकेज शो करता है। ये क्या शो करता है? सेक्स लिंकेज। क्या शो करता है? क्योंकि ये सब तो ऑटोनोमस है, होमोलॉगी है ना, नॉट पर्टेनिंग एंड रिलेटेड टू जेंडर ऑफ द पर्सन, दोनों में बराबर है, तो क्या है का डिफरेंस? नो चेंज इन रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट्स, but the change is experienced when the given organism is an unisexual, having a gender body specified, physically different, and with a change in their linkage. मेल्स में नॉन होमोलोगस लिंकेज है और फीमेल्स में होमोलोगस लिंकेज है। एवरीवन पहले नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया सबने ऐसा? एक्चुअली वाई क्रोमोसोम इसके कंपैरिजन में काफी छोटे साइज का होता है। वो तो मुझे जो कंसेप्ट समझाना है डेमोन्स्ट्रेशन में, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। सबको आया समझ में? जिस नॉन होमोलॉगी की हम बात कर रहे हैं, एक्स और वाई में वो कहां देखने को मिलता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर, है ना, सब मेटासेंट्रिक, this upper arm shorter is called P and this is Q arm. तो X क्रोमोसोम और Y, X क्रोमोसोम के P आर्म पे मौजूद ये जो जीन्स हैं, यहां जो जीन्स है इनके अलील्स P पे नहीं है। These are X linked genes। कैसे जीन्स हैं? ग्रीन कलर इस्तेमाल किया इधर, आप समझ गए ना। और Q आर्म इज इतना सा हिस्सा जो है क्या शो करता है? होमो। ऑल ओवर एक्स वाई एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन होमोलोगस। लेकिन जो क्यू आर्म है उसमें यहां जितने जीन्स है उतनी जीन्स
यहां है alleles, corresponding alleles. The difference due to non-homology occurs in P arm between X and Y. Everyone, आप देख सकते हैं मैंने कलर का इस्तेमाल यहां ग्रीन, यानी यहां जितने जीन्स हैं उनका अलील यहां पर नहीं है, और यहां पर जो जीन्स हैं दोज आर ऑल वाई लिंक्ड. कैसा जीन्स? होलो एंड्रिक जीन्स. कैसे जीन्स? तो सेक्स लिंकेज इटसेल्फ आर ऑफ 3 टाइप्स. X linked inheritance, Y linked. घर पे जाके आज थोड़ा शांत मन से फिर से आप पढ़ के देखना. उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे, बट कभी कभी होता है ना कि एकदम से ग्रैप्स नहीं हुआ होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं. आप समझिए ना, यहां पर मैंने बनाया ये, और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने आपके सामने रखा. कोई भी क्रोमोसोम खोलेंगे ये सेटअप है, वो तो मैंने एक से बनाया है. ऐसे सारे क्रोमोसोम के सारे क्रोमैटिन खोल के बिछा दें तो 2.2 मीटर जोड़ के स्पेस, और उसके अंदर ये है, तो एक अलग मॉलिक्यूलर लेवल का एक्सप्लेनेशन था, representing our genome at sequential, chemical, functional and physical level. When it acquires, when our genome acquires physical level, it is the luggage packed with our genetic information to be passed from one parent gender to the offspring gender. ठीक है ना? Through a unique cell division called meiosis, जिसमें half offset parents आएंगे. That's the concept of cytogenetics. तो ये चल रहा है. This is the transfer of genetic material. लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है, क्या एज सच पास हो रहा है? नहीं, विथ सम चेंज, विथ सम डिफरेंस कॉल्ड वेरिएशन बाय क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, व्हाट वी कॉल रिकॉम्बिनेशन. क्या कहते हैं? द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड यूजेबल, है ना, वे ऑफ ब्रिंगिंग चेंज. But the other form of variation is mutation, which is mostly harmful for animal kingdom. Which is harmful for? हालांकि mutation is also a good source of variation, but lower forms, other forms, asexual forms. Plants के लिए तो autoploidy, polyploidy is a very significant way to bring change in their strains, yes or no? But animal kingdom में mutation is mostly harmful. It has a harmful effect, but it does occur. तो म्यूटेशन अभी पढ़ना मेरा उद्देश्य नहीं है. म्यूटेशन का हटाओ, हम रिकॉम्बिनेशन से समझे. उस समय एक खास तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न देखा गया है, जेंडर टू जेंडर, है ना, पेरेंट जेंडर टू ऑफस्प्रिंग जेंडर, थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. And sex linked inheritance is decided by which form of our genome, chromosome form of our genome, which chromosome, because human karyotype have 2 types of chromosome, autosomes, and it is decided by sex chromosome, which is not alike in male and it is with some difference, non-homologous in males and homologous in. तो फिलहाल यहां पर ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, एक मेल बॉडी के अंदर है. किसके अंदर है? अब मेल बॉडी ने अपने बहुत सारे ट्रेट्स, उन बहुत सारे ट्रेट्स में से कुछ ट्रेट्स क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रेट्स है, और कुछ ट्रेट्स बॉडी के दूसरे ट्रेट्स है, एक्सेप्ट सेक्सुअल ट्रेट्स. सबके जीन्स पैक करके उनको एड्रेस इस पे मिला है. लेकिन पी आर्म पर जितने भी जीन्स मिले हैं, जीन मैंने लिखा है, बट दीज आर नॉट जीन्स, दे रिमेन इन देयर अलील फॉर्म, इन देयर, क्योंकि दूसरा अलील तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ स्लैंग, चलती भाषा में मैंने जीन शब्द लिख दिया है. यही तो भी मैं साबित करूंगा कि ये जीन अब सिर्फ जीन फॉर्म में नहीं है, हेमीजाइगस. कैसा है? नाउ दिस इज नॉन मेंडलिज्म, क्योंकि मेंडल ने तो 3 शब्द दिए थे, 1 जीन 1 कैरेक्टर, अ जीन विथ 2 अलील, डोमिनेंट एंड, और दोनों अलील जब 3 तरह से कंबाइन करके जीन पूल में पास होना चाहिए, ये था मेंडल का फैक्टर. यस और नो? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस. चौथा ऑप्शन आज आपने नया वर्ड सुना, हेमीजाइगस.
What is that condition that make a gene to behave and act like a hemizygous condition? यही तो साबित कर रहा है सेक्स लिंकेज को, जबकि फीमेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स एग्जिबिट होमोलॉगी। क्या एग्जिबिट करते हैं? जैसे पूरे 22 ऑटोसोम्स, ऐसा ही आखिरी है उनका। तो जीन पूल में अब देखना होगा कि वो जीन अगर फीमेल बॉडी के एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होता है तो वो अपने सब्सिक्वेंट ऑफस्प्रिंग में जब कभी भी ट्रांसफर करते हैं विथ इक्वल रेशियो, मेल फीमेल, सन एंड डॉटर में बराबर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेल, देयर इज अ डेविएशन, देयर इज अ नॉन मेंडेलियन डेविएशन। कैसा डेविएशन? सबको आया समझ में? एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड, क्योंकि मेल्स आर हेट्रोजाइगस, हेट्रोगैमस, the X of a male will always pass to daughter and the Y chromosome, sex chromosome, will pass to son only. This crisscross, this type of linkage, ये क्या संबंध है? संबंध है जेंडर का संबंध है कि किस जेंडर से किस जेंडर में जा रहा है। यही तो मैंने आज पहले लिखा था कि sex linkage is a type of inheritance where the trait and its gene of control present on X chromosome show a peculiar pattern of transfer from a gender parent body to a gender offspring. किसी को कोई डाउट? एवरीवन ओके? नाउ तो जिस लिंकेज की मैं बात कर रहा हूं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई, अब ये नहीं पढ़ना हमें तो सिर्फ ये दो पढ़ने इस साल, मतलब आज तक इन्हीं के क्वेश्चंस आए हैं, इन्हीं का ही नाम इस्तेमाल करके पेडिग्री एनालिसिस समझ लोगे आप। क्या समझ लोगे? आ रहा है सबको समझ में? अरे एक दिन 6 घंटे क्लास लूंगा ना तो कोर्स खत्म लेकिन व्हाट्स द यूज? डे 1 0 एंड द 6th आवर भी आप 0 हो गए, है ना? और आजकल वो जो आते हैं ना स्मार्टफोन पे जो अलग अलग स्माइलीज बने हुए, उनमें से 2-4 अपने पे चिपका लेना, सबकी शक्ल वैसी हो जाएगी। अरे यस और नो? अरे कुछ चीज है वो धीरे धीरे ही आता है ना। मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन तुमको तो वो धीरे धीरे आएगा ना समझ में, लिंक करते हुए। तो आई हैव टू मेंटेन दैट पेस ऑल्सो। एवरीवन, मैं पहले जानना चाहूंगा, मतलब अभी तक आप बिल्कुल वेल सीक्वेंस्ड हो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना? क्योंकि मैं एकदम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं। आ रहा है सबको समझ में? मतलब काउंटडाउन हैज बिगन। इतनी देर तो कंसेप्ट डेवलप कर रहा था, फंडामेंटल्स क्लियर करते हुए, बेसिक चीजें। अब आई एम कमिंग टू द काउंटडाउन कंडीशन ऑफ द डिस्कशन। सेक्स लिंकेज समझ में आ गया, और वो भी 3 टाइप के होंगे, और ये तीनों चीजें इन्फ्लुएंस मेल बॉडी में करेंगे। फीमेल तो बस कैरियर रहते हैं, दे देमसेल्फ आर नॉट सफरर, और जो भी है खुद तो कभी सफरर नहीं होते, लेकिन हाँ किसी भी फैमिली रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पॉपुलेशन। अरे किसी भी फैमिली में चले जाओ, 3 जनरेशन के लोग मिल जाएंगे आपको, 10 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे, है ना? 10-15 का एक जॉइंट फैमिली मिलके आपको ऐसे ही मिल जाएगा कैजुअली। तो उसमें आप जाके देखोगे जीन पूल में जो ट्रांसफर हो रहा है 3 जनरेशन, तो अगर ऐसा कोई ट्रेट, डिसजेनिक ट्रेट, ऐसा ट्रेट, एक तो ट्रेट है और वो डिसजेनिक है, यानी डिसऑर्डर कंटेनिंग, वो उस फैमिली में आया कैसे? और आता हमेशा फीमेल के थ्रू, मेल के थ्रू नहीं है। पास हमेशा कैसे होता है? तो फीमेल इज द कैरियर इन द जीन पूल, जबकि वो खुद सफरर नहीं होते। व्हाट इज द रीजन? तो उसका कारण ही है कि फीमेल्स अपने होमोलॉगी के कारण बच जाते हैं, फॉलोड बाय डोसेज कंपनसेशन, फॉलोड बाय, whereas मेल विथ हेट्रोगैमस नेचर, है ना, विथ हेमीजाइगस कंडीशन। व्हाट कंडीशन? अब एक ही अलील है हेमीजाइगस, दूसरा अलील तो वाई पे है ही नहीं, तो देयर इज नो चांस ऑफ जीन इंटरेक्शन, देयर इज नो चांस ऑफ, एक ही अलील मिला है, वो अच्छा मिला है बुरा मिला वही एक्सप्रेस होगा। तो आइदर मेल विल बी सफरर और नॉन सफरर, बट फीमेल्स विल एग्जिबिट द 3 कंडीशन। लेकिन उसमें भी फीमेल्स बच जाते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कैरियर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सो दैट्स द यूनिक डेविएशन। इसलिए शुरू में ही मैंने लिख दिया था नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जबकि मेंडेल के अकॉर्डिंगली तो मोर और लेस विदाउट सच एनी इन्फ्लुएंस। उनको थोड़ी पता था व्हाट इज सेक्स लिंकेज, वो तो एक ही चीज में अटक गए थे, एक ही पेड़ के साथ। अरे हाँ कि ना? राइट? सबको आ रहा है समझ में? उनकी अपनी अलग बायोग्राफी है। तो सिंपली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब पी आर्म having the genes of trait, X linked मतलब P arm having the genes of trait। सही बात है।
अब ये एक्स क्रोमोसोम एक जेंडर बॉडी है और किस जेंडर से आएगा? अगर मेल है तो मेल का एक्स तो हमेशा मदर से ही आया होगा, फादर से। तो किसी भी फैमिली में सेक्स लिंक्ड डिसजेनिक ट्रेट, सेक्स लिंक्ड कैन नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। एक फ्लो चार्ट पेडिग्री बना होगा और लिखा होगा कि गिवन चार्ट इज ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बताइए इसके लिए क्या स्टेटमेंट सही है। मतलब आपको पता नहीं लगाना, बता दिया है उन्होंने। क्वेश्चन बनने के तरीके बनाए पेडिग्री ट्री और कहा कि एक फैमिली में स्टडी हुआ और ये चार्ट एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का चार्ट है, तो बताइए अब इस चार्ट को देखकर कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है या ऑल ओवर, मतलब क्या एरर है, क्या एरर दिखाया गया है। तो एक दिन आएगा जब मैं पेडिग्री एक दिन पूरा चले चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए, देखना यही सारे रूल्स, नथिंग न्यू, एक्सप्लोर करने का तरीका नया रहेगा बाय यूजिंग सम साइन एंड सिंबल्स। लेकिन जो पीछे का ग्रास रूट का सब्जेक्ट है, मतलब थ्योरी है, वो तो यही सब रहेगा ना। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? एवरीवन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट, और उसमें भी गौर करने वाली बात है कि अगर वो रिसेसिव है तो, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव होता है, क्वेश्चन हमेशा रिसेसिव का ही आता है। एक्स लिंक्ड ट्रेट के सारे जीन्स हमेशा पी आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाएंगे। किस पे पाए जाएंगे? क्लियर? चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी में ऐसे बना के फीमेल्स में ऐसे पाए जाएंगे होमोलॉगी के साथ। ग्रीन ग्रीन यहां पर शो करेंगे और नीचे दिस इज होमोलॉगी। तो फीमेल में ऐसे पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं और उनका असर, उनका जो इफेक्ट है, वो एक मेल बॉडी में जीन पूल में देखने को मिलेगा किसी भी पॉपुलेशन में। आ रहा है सबको समझ में? वेयर फीमेल्स आर डिप्राइव ऑफ दैट इफेक्ट मोस्टली 99.9%, 0.1% चांस होता है हीमोफिलिक, कलर ब्लाइंड एंड अदर सच डिसऑर्डर फीमेल्स, बट दे आर अनवायबल। दे आर, क्योंकि पॉपुलेशन में वो तो जिंदा नहीं रहते और रह भी जाए तो उनकी शादी नहीं हो सकती, शादी तक के एज तक पहुंच नहीं पाते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। भले ही मैं 5 कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जिसमें कलर ब्लाइंड मेल या हीमोफिलिक मेल मैरिज अ हीमोफिलिक वुमेन, तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं पॉपुलेशन में। इसलिए तो मेल्स सफरर या नॉन सफरर, फीमेल्स कैरियर या नॉर्मल। आया सबको समझ में? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हीमोफिलिक फीमेल इज अनवायबल, अन, उपलब्ध ही नहीं हो सकते। आया सबको समझ में? एवरीवन? क्योंकि मान के चले एक फीटस ऐसा बर्थ लेता है, जैसी पार्चुरेशन होगा, सर्जिकली होगा, तो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं। अब आया समझ में? वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, वो प्रैक्टिकली बात करें तो वो फीटल स्टेज में ही डिस्कार्ड हो जाता है मिस कैरेज, ऐसा, क्योंकि जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है। बहुत सारी बातें, मैंने कहा मेडिकल साइंस एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पे आ जाए तो फिर अलग टाइप से बातें चालू हो जाएंगी जिसका पीएमटी से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होगा उससे। अरे आया समझ में? यहाँ तो अभी इंप्रेस होंगे, और क्या, यस, मतलब, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए अभी तुम्हारे दिमाग में क्या लिटरेचर क्लियर होना चाहिए, आप उस दायरे तक सोचो आप। क्लियर? बाकी पहुंच गए तो फिर मिल लेंगे 10 साल बाद। अरे आ रहा है समझ में? Okay, so if it is so, then characteristics of X-linked trait recessive, it exhibit crisscross, zigzag, skip generation inheritance, and genetic dowry. Crisscross, zigzag, skip generation, and genetic dowry inheritance.
Moreover, the other characters are लैंग्वेज कैसे भी इस्तेमाल करें, मतलब इट शुड बी इन स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडेबल कंडीशन. एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल passes to daughter, y of male passes to son, a son receive its X chromosome from mother, या वर्ड फादर यूज भी कर सकते हैं कि एक्स ऑफ फादर passes to daughter, y of father passes to son, and son receive its X chromosome from mother only. So these all given statements are true, justifying criss-cross inheritance. What inheritance? See the gender, from gender parent to gender offspring. और अगर ये जो हिस्सा है वाई, ये वाला होलोएंड्रिक, मतलब मेल टू मेल ओनली, मेल टू मेल ओनली इन अ फैमिली, नेवर पास टू बी डॉटर. अगर एक पेडिग्री चार्ट में कोई कैरेक्टर फीमेल में मौजूद दिखाया शेडेड में, वो कभी भी वाई लिंक, मतलब द ट्रेट कुडंट बी ऑफ अ वाई लिंक्ड ट्रेट इन अ फैमिली, क्योंकि ट्रेट इज प्रेजेंट इन फीमेल ऑल्सो, जबकि वाई लिंक्ड ट्रेट कभी भी किसी भी फैमिली में डॉटर में नहीं हो सकता. हो गया, आज ही सीख लिया आपने वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस और कैसे वो पता लगा सकते हैं गिवन पेडिग्री एनालिसिस में. सबको आ रहा है समझ में एवरीवन? और अभी अभी आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट आए हैं, 3 स्टेटमेंट्स. इसी को बोलने का तरीका, सफरर फादर, अब वो कोई भी डिजीज हो जो एक्स लिंक्ड कैटेगरी का है, सफरर फादर कैन नॉट हैव sufferer son with normal woman. बात बिल्कुल सही है. द मेल इज सफरर, लेकिन उसकी बेटर ऑफ वाइफ जो है इज अ नॉर्मल वुमन with not containing that trait, so can't have sufferer son, but can produce, but can carrier daughter. और डॉटर हमेशा कैरियर ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक ही तो एक्स क्रोमोसोम था जो कि डिफेक्टिव था. फादर, अरे आया समझ में? क्या होता है, मैं जैसे आज लिख दे रहा हूं, जरूरत नहीं है ना थोड़ी देर के लिए 5 कॉम्बिनेशन बनाओ और उसको देख के तुम खुद ही इंटरप्रेट करना चालू तो करो, खुद अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट करो ना उसको, हो गया लिटरेचर तैयार. एंड यू नीड हाफ एन आवर टू प्रैक्टिस इट. एक होता ना, बना लिया, उसको देख देख के इंटरप्रिटेशन लिख लिया, लिख के बस उसी को ही 3-4 बार याद तो करो बैठ के थोड़ा सा, वही लर्न, हो गया तैयारी. और फिर नेक्स्ट लेवल इज या तो आइदर अप्लाई इट विद द पेडिग्री एनालिसिस चार्ट और गो सम फॉर सम क्वेश्चन मेकिंग ऑन परसेंटेज बेसिस, दूसरा पैटर्न क्वेश्चन, या फिर अभी अभी जो इतने लिटरेचर पढ़ाया, क्योंकि इन नॉर्मली इन सेक्स लिंक्ड ट्रेट फीमेल्स आर नॉट सफरर, व्हाई ऑप्शंस, तो वो तो क्यों, वो तो मैं अभी साबित करूंगा ना, डोसेज कंपनसेशन और वो सब. सबको आया समझ में? तो sufferer son will have always a carrier mother. Just a converse statement of the given statement above mentioned. इतने देर से हमने कहा कि एक फैमिली में सफरर सन आ ही नहीं सकते कि अगर सफरर फादर है और मदर नॉर्मल है, तो वही कि जेंडर देखिए, मेल जेंडर ऑफस्प्रिंग, और उसमें बीमारी फादर से नहीं आ रहा है, मदर से ही आएगा, मतलब ये दैट व्हाट आई मीन टू से. एंड डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ सेक्स लिंकेज, जेंडर पेरेंट टू जेंडर ऑफस्प्रिंग विद अ क्रिस क्रॉस इफेक्ट. व्हाट इफेक्ट? in a population,
मेल, और मैं हीमोफीलिया पढ़ा रहा था इसलिए एच नॉर्मल, और ये सफरर। जबकि वही फीमेल पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल नॉर्मल है ना, ये सफरर, लेकिन नॉन वायबल, अनवायबल लिख सकते हैं वर्ड। सफरर तो है मतलब थ्योरेटिकली, बट अनवायबल, पॉपुलेशन में ऐसा है ही नहीं। बच्चे अब ये मतलब देखा जाए तो दो और दो, ये तो डिलीटेड है, अनवायबल। तो यहां तक तो मेंडलिज्म है, यस और नो? What about this? Why the difference is over there with heterozygous nature? But it is heterozygous, it is not. It is hemizygous. It is, अब आया समझ में प्रेजेंटेशन? कैरियर तो ऑप्शन में ऐसे ही तो लिखा रहेगा, मतलब अब आपको क्वेश्चन समझ लेना है। मैं तो अपनी फंडामेंटल टीचिंग कर रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन जब बनते हैं, इन अ फीमेल दिस टू कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट विथ मेल फीमेल, है ना, मेल इज सफरर एंड फीमेल इज कैरियर, ऑप्शन। जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा कैरियर एंड हेट्रोजाइगस, और जिसमें लिखा रहेगा सफरर एंड हेमीजाइगस, क्योंकि ये अलील है, यहां अलील तो है ही नहीं, यही एक्सप्रेस होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली इनर्ट क्या हो जाता है? दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज डोसेज कंपनसेशन, लेऑन्स हाइपोथेसिस। तो ये एक्सप्रेस हो जाता है नॉर्मल अलील एच, कैपिटल एच, और ये दब जाता है इनर्ट, हेट्रोपिक्नोटाइज्ड होकर, जेनेटिकली इनर्ट होकर एक्सप्रेस नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स हैव बीन इम्पार्टेड विद अ डोसेज कंपनसेशन वेयर अ नॉर्मल फीमेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन एक्स बॉडी, वन बार बॉडी। तो उस दिन पढ़ा था, वहां तो पढ़ाने का कारण कुछ और था, कुछ और साबित करने के लिए, है ना। सेक्स क्रोमैटिन कहा था मैंने, जेंडर पता लग सकता है ना, गिवन सैंपल से विथ सम फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस, यस और नो? और आज नेचर में इसका फायदा फिर फीमेल को कैसे मिलता है जीन पूल में, टू गेट रिड ऑफ सम ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ सच ट्रेट्स इफ इट टर्न आउट टू बी डिसजेनिक, इफ इट टर्न आउट टू बी, बस इतनी सी बात याद रखना है। अब क्या करना है? अब जो मैंने बातें बोली हैं, ऐसा थोड़ी है कि अब बैठ के हर बीमारी के लिए ऐसे पढ़ना है। अब तो बस आपको डेजिग्नेशन चेंज करना है। क्यों? क्योंकि नाउ लेट मी लिस्ट आउट सम डिसजेनेटिक ट्रेट इन द पॉपुलेशन फॉलोइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, व्हाट दे आर। एक जो आप जानते हैं हमेशा से, कलर ब्लाइंडनेस, अभी अभी आपने देखा सीखा हीमोफीलिया। इसके अलावा डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन्फेंटाइल पूरा नाम है, इन्फेंटाइल डुचेन्स मस्कुलर, कहां पढ़ा चुका हूं मैं? मसल्स के साथ। आया समझ में? एट्रॉफी डिस्ट्रॉफी, एट्रॉफी हाइपरट्रॉफी डिस्ट्रॉफी, टिटनस टेटनी स्पाज्म स्ट्रेन, वो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है। उस बीमारी में होता क्या है वो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन होने का कारण जेनेटिक एब्रेशन, जेनेटिक खराबी, एनामोली एट जीन लेवल ड्यू टू डिलीशन, क्या बोलते हैं, जीन रिसेसिव बन के जब एक्सप्रेस होगा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा, डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा तो टी ट्यूब से आगे इंपल्स कैरी कैसे होगा? कैल्शियम रिलीज ही नहीं होगा, तो इंपल्स तो आएगा बट द मसल विल नॉट रिस्पॉन्ड, स्लोली इट बिकम्स इनएक्टिव। मसल्स हैव अ नेचर ऑफ इलास्टिक, सब लूज हो जाएगा, इट विल लूज इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ। गाउटी आर्थराइटिस,
ये भी मैं एक्चुअली पढ़ा चुका हूं चैप्टर, वही स्केलेटन सिस्टम के साथ। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स की कमी के कारण अनवांटेड यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से ग्रेटर टो, पैर के अंगूठे से शुरू होता है और फिर हाथ के अंगूठे में, जो छोटे छोटे, गाउटी आर्थराइटिस में छोटे छोटे जॉइंट्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस में बड़े जॉइंट्स, ऐसा करके मैंने सब पढ़ा दिया है। वो होता क्या है वो बताया था, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस एजिंग इफेक्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज, और गाउटी आर्थराइटिस इज अ genetic disorder. Which category? X-linked. Males are sufferer, females are carrier. आया समझ में? ऐसे ही एक होता है लेशनिहान सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? Again, purine metabolism is related. The person is deprived of phosphate and other such things and have a tendency of self mutilation. अपनी उंगलियां चबा डालेगा, किसी और पे अटैक करेगा। नरभक्षी कहते हैं इनको, ऐसे लोगों को। People identify them as cannibals, but actually they are mentally, मतलब they are, मतलब उनकी बॉडी की डिमांड और ऐसा हो जाता है कि they are helpless, है ना। they need medical assistance, but people will take in society as a taboo stigma कि अरे ये क्या है, मतलब दैत्य दानव। अरे आया समझ में? तो that person needs that medical assistance. तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डीएमडी, गाउटी आर्थर, लेशनिहान सिंड्रोम, एक मेनकीज डिजीज होता है कॉपर से रिलेटेड। G6PD सिंड्रोम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, आरबीसी की लाइफ कम हो जाता है। और ऐसे, और क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, दीज टू पीपल आर नॉन सफरर ऑफ मलेरिया, क्योंकि आरबीसी की लाइफ कंटिन्यू नहीं हो पाती और ऐसे में प्लाज्मोडियम अंदर पनप नहीं पाएगा, परपिचुएट नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करेंगे आप? स्मॉल सी, स्मॉल एच, स्मॉल डी, जी, एल, सब स्मॉल लेटर इस्तेमाल करें, इन पे पुटअप करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि सब पे नियम तो यही लागू होगा ना, यस और नो। इन सब के जीन्स अगर नॉर्मल है तो भी किस पर मौजूद है? कि पी आर्म पर। आया समझ में? और डिफेक्टिव होंगे तो मेल विल बी हेमीजाइगस, फीमेल विल बी हेट्रोजाइगस, and with a non-Mendelian pattern they will pass in the next population through the gene pool. सबको आया कंसेप्ट समझ में? है ना। 10:30 बज गए, मुझे भी पता है, बोले सर अब आ ही गए समझ में, लेकिन आ गया समझ में। आज एक हिस्सा बहुत बड़ा कवर हो गया, मतलब एवरीवन। बाकी एनसीईआरटी 12th हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस का पैराग्राफ पढ़े, कुछ ना समझ में आए तो आके पूछ लीजिएगा। रेस्ट आई हैव कवर्ड। बस वो 4 वर्ड समझने के लिए। और ठीक है, नेचर में एक ऐसा कॉम्बिनेशन, अ नॉर्मल मैन मैरिज एक्सीडेंटली अ फीमेल विथ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस व्हाट? जीनोटिपिक डिफेक्ट एंड फिनोटिपिकली नॉर्मल। या थोड़ा एक जनरेशन पहले से शुरू करते हैं कि इसके पिताजी ऐसे थे, मदर, यानी पी जनरेशन, दे हैड देयर डॉटर, F1 जनरेशन, है ना, suitably search a boy for marriage and they had their first child with a chance of 50-50% to be male. तो with this combination ऐसा हुआ. So that's the beginning of zigzag. Crisscross. Crisscross कैसे? Father to daughter and from mother to son. Gender wise बात करें, male to female, female to, this is what we mean by crisscross. क्रिस इनहेरिटेंस। बाकी ये तो इसके चलते हुए ऐसा नाम पड़ा, और हिस्ट्री रिपीट्स, ये बड़ा होके फिर ये नाना जी जैसा बनेगा, फिर इसकी शादी होगी किसी से नॉर्मल, मतलब अगर ऐसे बात करें तो। अरे यस और नो? तो जस्ट टू कंप्लीट दैट जेड लाइन, जेड जिगजैग क्रिस इनहेरिटेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, F2 ये सफरर है ना, ये नॉन सफरर एक जनरेशन, फिर ये सफरर है, तो एक एक जनरेशन स्किप कर रहा है, स्किप जनरेशन, एंड फाइनली जेनेटिक डाउरी, बिकॉज सिंपली यू कुड सी, मतलब एक बोलने का ही तरीका है कि इस फैमिली में, सो कॉल इस मेल के फैमिली में ये जेनेटिक डिसजेनिक ट्रेट, है ना, कैसे आया है? एज अ एक्ट ऑफ दैट कस्टमाइज्ड सोशल प्रोसेस ऑफ मैरिज, हेंस बीइंग कॉल्ड जेनेटिक डाउरी इनहेरिटेंस।
क्लियर? तो अब आप ऐसा किसी भी बीमारी का नाम लेके पढ़ सकते हैं।